गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के साथ हम आपके सामने हैं वो है बैंकिंग। बैंक्स के बारे में आप जानते होंगे, आपने इससे पहले वाले लेक्चर में मनी के बारे में सुना था। मनी जब आया, क्योंकि मनी ब्रिटिशर्स के समय में आया, तो मनी का जो सर्कुलेशन का प्रोसेस था या मनी सप्लाई को चलाने का जो तरीका था, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इसके लिए एक ऐसी एजेंसी सेटअप की जाए जो इससे रिलेटेड सभी निर्णय ले, चाहे उसको छापने का, चाहे उसको सर्कुलेट करने का, चाहे उसको मैनेज करने का, जो भी चीजें रिलेटेड टू, चाहे वो लीगल हो या जो भी चीजें हो। तो उसके लिए उन्होंने एक बॉडी तैयार की, गवर्नमेंट बॉडी अपने समय में, और उसको नाम दिया गया आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बैंक होते क्या हैं। बैंकिंग है, बैंक से आया है। बैंक किसको कहते हैं? बैंक वो इंस्टीट्यूशन होता है which perform two functions. Which perform two functions. बैंक वो संस्था होती है जो दो काम करे, दो काम जरूर करे। पहला, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, और दूसरा ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन एंड एडवांसेस। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जो आपके पैसे को रखे। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि आजकल पोस्ट ऑफिस भी आपके पैसे को जमा कर रहा है, तो क्या आप उसको बैंक कहेंगे? नहीं कहेंगे बैंक, क्योंकि वो केवल आपके पैसे को जमा कर रहा है, आपको लोन नहीं दे रहा है, तो बैंक नहीं हुआ। एलआईसी की बात करें तो एलआईसी आपको लोन देता है, लेकिन आपका पैसा जमा नहीं करता, वो तो आप प्रीमियम जमा करते हैं अपने एलआईसी का ना। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, एक जगह पैसा लिया जा रहा है लेकिन लोन नहीं दिया जा रहा है, दूसरी जगह लोन दिया जा रहा है लेकिन पैसा नहीं दिया जा रहा है, तो उन दोनों को हम बैंक का नाम नहीं दे सकते। इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस which provide loans like Kotak Mahindra, Tata, Mahindra Finance, Muthoot Gold Loans, these all are several institutions. So some students might be confusing that whether they are the banks or not. So students, they are not the bank, because they are only performing a single function, that is granting loan and advances. They are not accepting the deposits. So any institution which perform basically the two functions, the first one is the accepting deposit and the second one is the granting loan and advances, they are only considered as the banks. They are only considered as the banks. Now come to the point. In our country, the banks are of two types. In our economy, the banking system is divided into two parts. The first one is the commercial bank and the second one is the central bank. दो तरह के बैंक हमारे अर्थव्यवस्था में आपको मिलेंगे, एक कॉमर्शियल बैंक्स हैं और दूसरे सेंट्रल बैंक्स हैं। अगर हम कॉमर्शियल बैंक्स की बात करें तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या है? वो सारे बैंक्स जो आज आपके देते हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट एसबीआई, पीएनबी, and there are so many banks. At the presently there are more than 125 commercial banks are working in the country, and more than 80 or 90% are nationalized commercial banks. But central bank is only one. We have only one central bank, and every country have only one central bank in their country which regulates the entire banking system of that country. That is called the central bank of that country. In our country, we have the central bank. And which central bank? That is called RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India. This is the name of the central bank. And the central bank have a governor. At present, our governor
governor is Shaktikant Das. Mr. Shaktikant Das is the governor, and it was established. कब खुला था ये? It was established at the time of Britishers, and it is on 1st April 1935. It was established on 1st April 1935 in Kolkata, and its headquarters is in Mumbai. Its headquarters is in Mumbai. So, students, our entire banking system is divided into two types of bank. One is the commercial bank and one is the central bank. Now we start with the central bank. This is all about the basic details of the central bank. You go through more detail in your books. So this is all about when it is set up, who is the governor at present. Okay. Now students, अब एक क्वेश्चन आता है कि क्यों कंट्री में दो तरह के बैंक बनाए गए, कॉमर्शियल बैंक भी बनाया गया और सेंट्रल बैंक भी बनाया गया। तो ये डिपेंड करता है, दोनों बैंकों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग विद द फंक्शन ऑफ आरबीआई। सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ आरबीआई, द फर्स्ट फंक्शन इट इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन। आरबीआई जो है हमारे देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन। इट इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। अब बात आप सोच रहे होंगे कैसे सबसे बड़ा है? बिकॉज ओनली आरबीआई इन आवर कंट्री हैव अ सोल मोनोपोली ऑफ इशू करेंसी नोट्स। हमारे भारत में केवल और केवल आरबीआई को ही अनुमति है कि वो करेंसी नोट छाप सकता है, इसके अलावा कोई नहीं छाप सकता। अगर आप करेंसी नोट छापते हुए पकड़ा गए तो आपका सीधे जेल में जाना है, क्योंकि भारत में केवल और केवल आरबीआई को ही दिशा निर्देश दिए गए। इट इज गवर्न बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा ये गवर्न होता है। तो पैसा वही छाप सकते हैं, ठीक है। अब आइए, जो पैसा आरबीआई के द्वारा छापा जाता है उसको हम लीगल टेंडर मनी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और वो पैसा जनरली एक्सेप्टेबल होता है सभी के लिए। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा कि पहला सबसे बड़ा फंक्शन क्या होता है? इट इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द एंटायर बैंकिंग सिस्टम बिकॉज इट हैव अ राइट टू इशू करेंसी नोट्स। दूसरा, it act as a banker, advisor and supervisor of government। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका खाता कहां पे है? सभी लोग का खाता होता है किसी ना किसी बैंक में, किसी ना किसी कॉमर्शियल बैंक में, किसी ना किसी बैंक में नहीं, किसी ना किसी कॉमर्शियल बैंक। अब जैसे मान लो कि मेरा खाता पीएनबी में है, तो मैं कहूंगा मेरा खाता पीएनबी में है। इसी तरह सरकार का भी तो खाता होगा, गवर्नमेंट का भी तो खाता होगा, कहां होगा? तो गवर्नमेंट का खाता किसके पास होता है? गवर्नमेंट का अकाउंट आरबीआई के पास होता है। जैसे हम अपना खाता कॉमर्शियल बैंकों में खोलते हैं जहां पे हम अपना पैसा जमा करते हैं और जब हमें जरूरत होती है तो हम उनसे लोन भी लेते हैं। इन अ सेम वे सरकार जो है, भारत सरकार का खाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होता है। वहां पे वो अपना सरप्लस जो भी फंड उनके पास आ रहा है बाय द वे ऑफ टैक्स, बाय द वे ऑफ मींस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो भी आता है उनका जो भी पेमेंट करना हुआ, जहां से भी पैसा लेना हुआ, शेयर खरीदना हुआ, जमीन खरीदना हुआ, मशीन खरीदना हुआ, जितनी भी बड़ी बड़ी बायलैटरल डील्स होती हैं दो देशों के बीच, ये जितना भी पेमेंट है, चाहे वो फिस्कल डेफिसिट का पेमेंट हो, चाहे वो बजट हो, जो भी चीजें हो रही हैं, उन सबको सरकार के लिए फाइनेंशियल मैटर से जुड़ी हुई, सरकार के फाइनेंशियल मैटर से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती हैं, उसका गाइडलाइन, उसका दिशा निर्देश, उसका डायरेक्टिव, उसका सुपरविजन कहां से होता है? आरबीआई से होता है।
तो इसीलिए कहा गया आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर, क्योंकि खाता होता है, सरकार का खाता है आरबीआई के पास, तो बैंकर हो गए। एडवाइजर कब क्या करना है, कब मनी के फ्लो को बढ़ाना है, घटाना है। जैसे आप देख रहे होंगे अभी कोविड-19 में रेपो रेट को थोड़ा सा सरकार ने, शक्तिकांत दास जी ने एक प्रेस रिलीज किया था जहां पे ये कहा था कि 3 महीने तक जो भी इंटरेस्ट हैं वो नहीं चार्ज किए जाएंगे। बैंक से अगर हम एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं किसी भी एटीएम से तो उसके चार्जेस नहीं लगेंगे, इंटरेस्ट रेट्स को घटाया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो सरकार को एडवाइजरी जारी करनी है ये कौन करता है, आरबीआई करता है। एंड सुपरवाइजर मतलब ये बैंकिंग सिस्टम को हमेशा सुपरवाइज करते हैं, ये देखते हैं कि जो बैंकिंग सिस्टम, जो कॉमर्शियल बैंक है वो सुचारू रूप से सही तरीके से देश में काम कर रहे हैं या नहीं। जो भी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से या आरबीआई की तरफ से दी जा रही है क्या वो स्ट्रिक्टली फॉलो हो रही है कि नहीं, जो भी पॉलिसीज फॉर्मुलेशन है वो सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं। तो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द सुपरवाइजर। तीसरी बैंकर्स बैंक, ये बैंकों का बैंक है। क्लियर? जिस तरीके से हमारा अकाउंट कॉमर्शियल बैंकों में होता है, उसी तरह आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, ऑल द कॉमर्शियल banks must have the account with RBI. They have the account with RBI. सभी के पास, सभी का खाता आरबीआई में होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक। जैसे हमारा बैंक कहते हैं ना, एसबीआई हमारा बैंक है क्योंकि हमारा खाता है वहां पे, तो हमारा बैंक हो गया। उसी तरह बैंकों का खाता किसके पास है, आरबीआई के पास है, तो बैंकों का बैंक क्या हो गया, आरबीआई हो गया। अब सेम जिस तरीके से कॉमर्शियल बैंकों का रिलेशन हमारे साथ है, हमारे साथ हम क्या करते हैं, हम अपना पैसा अगर सरप्लस है तो हम बैंक में रखते हैं, क्यों, इंटरेस्ट मिलता है। अगर जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, वहां से पैसा निकालते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट चार्ज होता है। सेम काम यहाँ पे भी होता है। जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं वो अपना पैसा सरप्लस फंड किसके पास रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं, ताकि इनको आरबीआई क्या देता है, रिवर्स रेपो रेट देता है। रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, इट इज द इंटरेस्ट अलाउड बाय द सेंट्रल बैंक ऑन टू कॉमर्शियल बैंक ऑन इट्स लोन्स, ऑन इट्स दिस सरप्लस फंड विच दे केप्ट विद द आरबीआई। जब कॉमर्शियल बैंक अपना सरप्लस पैसा आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई उनको उस पैसे के एवज में, बदले में कुछ इंटरेस्ट देता है, जिसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी कॉमर्शियल बैंक बोरो भी करते हैं फंड, और उस पे आरबीआई उनसे चार्ज करता है बैंक रेट या रेपो रेट, बैंक रेट या रेपो रेट। बैंक रेट, रेपो रेट एक तरह का इंटरेस्ट है which can be charged by the bank on their short term and long term loans and advances. Okay, so that's why it is called as the bankers bank. उसके बाद लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट जैसे क्या होता है यहाँ पे, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपको पैसे की जरूरत है, आपने अपने फ्रेंड से कहा पैसा चाहिए, उसने कहा नहीं, आपने और भी 2-4 लोगों से ट्राई किया नहीं, तो एट लास्ट आप किसके पास जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, मम्मी के पास जाते हैं, पापा के पास जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से मैनेज करके देते हैं। इन अ सेम वे कभी कभी क्या होता है, कॉमर्शियल बैंकों को कैश की जरूरत पड़ती है। अब वो क्या करते हैं, वो आरबीआई से पैसा लेते हैं। सपोज जैसे मान लो कि सपोज मैं मैनेजर हूं एसबीआई का, मेरा एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है जो कह रहा है कि मुझे 1000 करोड़ चाहिए।
अब 1000 करोड़ चाहिए, मेरे पास 1000 करोड़ नहीं, मेरे पास बैंक में केवल 500 करोड़ है। अब मैं जान रहा हूं कि ये मेरा ग्राहक है, ये मैं इसको पैसा दूंगा तो ये मुझे इंटरेस्ट देगा जिससे मेरी कमाई होगी। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ पे चूंकि वो कस्टमर है उसको भगा सकते नहीं, क्योंकि उसका खाता है कॉमर्शियल बैंक में, वो आया है, वो पैसा मांग रहा है, बदले में वो मुझे इंटरेस्ट देगा। तो पहले तो कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, अपने अदर ब्रांचेस से कहते हैं कि भाई मुझे फंड की जरूरत है, आप दे दो मुझे। अगर बाई द वे सबने डिनाई कर दिया कि नहीं भाई हमारे पास पैसा नहीं, हम नहीं दे पाएंगे, तो अल्टीमेटली फाइनली लास्टली all the commercial banks या that commercial bank who needs money approaches to the RBI। वो RBI के पास जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनको पैसा देगी और बदले में वो कुछ इंटरेस्ट उनसे चार्ज करेगी। That's why this RBI is act as a lender of last resort। अंततो गत्वा अगर बैंकों को कहीं से फंड अवेलेबल नहीं होता है या कभी भी भविष्य में फंड की शॉर्टेज होती है तो वो अप्रोच करते हैं सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक उनकी इस नीड को पूरा करता है। उसके बाद एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट और मनी। और जो सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट फंक्शन कह लीजिए या ऐसा फंक्शन जो सबका कह सकते हैं बाप, सबका बाप है ये फंक्शन, मीन्स अगर ये काम न करे ना आरबीआई तो पूरी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी, हमारी खत्म कहानी हो जाएगी। और अगर देखा जाए ना तो ये सबसे जरूरी है, यही जान है पूरे इकोनॉमी की, वो है एक्ट एज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई होता है टोटल स्टॉक ऑफ मनी, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल इन एन इकोनॉमी, इन एन इकोनॉमी। टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल इन एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में जो टोटल स्टॉक ऑफ मनी होता है जो लोगों पास, तो मनी सप्लाई कहलाता है। अब आप सुनते होंगे ना महंगाई आ गई, महंगाई, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ये क्या होता है? इन्फ्लेशन महंगाई, डिफ्लेशन मंदी। अब ये महंगाई और मंदी होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा छोटा सा है, समझ जाएंगे आप। इन्फ्लेशन में बेसिकली होता क्या है, इन्फ्लेशन में जो मनी की सप्लाई है वो बढ़ जाती है। अब जब मनी की सप्लाई बढ़ती है तो मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वही डिफ्लेशन में क्या होता है कि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है और मनी की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और ये दोनों किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है, बार बार होना। ट्रेड साइकिल इसको कहते हैं, ट्रेड साइकिल जनरेट होना बार बार किसी इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। बार बार महंगाई आ रही, बार बार मंदी का दौर आ रहा है, तो ये किसी अर्थव्यवस्था को स्टेबल इकोनॉमी बनने में बहुत दिक्कत पैदा करती है, ये किसी देश के लिए अच्छी बात नहीं है। और आरबीआई हमेशा इन चीजों को बैलेंस करने का प्रयास करता है। इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए वो मनी सप्लाई को रिड्यूस करने का प्रयास करता है और डिफ्लेशन को दूर करने के लिए वो मनी सप्लाई को बढ़ाने का इस्तेमाल करता है। और इसके लिए वो वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के नाम से जानते हैं। ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताएंगे। सो बेसिकली ये जो फंक्शन है आरबीआई का, ये सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन है टू कंट्रोल द क्रेडिट, या क्रेडिट का मतलब यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस से। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे रेपो रेट है, सीआरआर है, एलआरआर है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट है, क्रेडिट रेशनिंग है। ये बहुत सारे तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आरबीआई इकोनॉमी में मनी के क्रिएशन को, मनी की सप्लाई को या क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक को समय समय पर रेगुलेट करती है, सो दैट they have to achieve the goal of economic stability, because in government budget the main aim of economy is to stabilize the economy, and it can be only done when there is a regulation of money supply. So students,
this is all about the function of money supply. You go through again and again this lecture. Prefer your book for more further detail, and just revise this topic. Be healthy, be safe. Thank you.